Okay, I'll start. You know, बहुत जल्दी, soon you have reminded me. It's okay. अब देखिए, तो अभी जो how to connect the asanas. Now, suppose in the supine pose, you have done some asanas. You are going to do prone line pose. So you have to do inverted pose of the supine pose. The supine pose, what supine pose was, कौन सा pose था? Supine pose था सेतु बंधासना, bridge pose. Okay. तो जब हम पेट के बल लेटेंगे, तो you have to do something which is forward bending, because last में आपने backward bending किया था. पैर को उठाए थे ना, that was backward bending. तो अब जो आसन करने वाले हैं, now यहाँ से बोलेंगे go to tabletop pose and then Sasanka asana. So this is Sasanka asana. Now from Sasanka asana you are bending forward, right? We are bending forward. Exactly last asana में क्या किया था? हमने backward bending किया था. So this is called linking between two types of asanas practice. Coming from supine to prone line, you have to think this way. Now from here you can give supine strengthening exercise. जैसे supine strengthening exercise आपने किया था ना, उत्तान पादासन वगैरह. अब यहाँ पे prone line strengthening, this is prone line strengthening. So from Sasankasan, Bhujangasana. From Bhujangasana, Sasankasan. From Sasankasan, Bhujangasana. Inhale. Exhale. From Bhujangasana, Sasankasan. Inhale. Bhujangasana, Sasankasan. So you can give number, let's say 10 rounds. And after 10 rounds, this is something like, you know, strengthening postures for your what do you say, this armpit. And then from here, simple release and relax. And from here, practice will go on all these prone line postures. So prone line postures. First is Niralambhasana. You can note down the names. Niralambhasana. So first Makarasana, then Niralambhasana. We did Shasankasana, Bhujangasana. These are the names you should write down. ठीक है? तो जैसे प्रोन लाइन में आया, क्या किया हमने? शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, इसको डायनामिक कर दिया फॉर द स्ट्रेंथनिंग. ठीक है? फॉर स्ट्रेंथनिंग हमने इसको डायनामिक कर दिया, फॉर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड वार्म अप. ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस हम जो करेंगे दैट विल बी निरालंबहासना. निरालंबहासना हम जब प्रो लाइन में आए थे, सुपाइन से प्रो लाइन में जब हम आए थे, तो हमने कौन सा आसन किया था? शशांकासन. क्यों किया था? कोई बता सकता है क्यों किया था? इसलिए क्या था? फॉरवर्ड बेंडिंग, सेतु बंधा. हाँ, बिकॉज लास्ट एक्सरसाइज हमने बैकवर्ड बेंडिंग किया था, तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए हमने किया था. और फॉरवर्ड बेंडिंग जब हमने करने के लिए किया शशांक आसन, तो हमने शशांक भुजंग हमने थोड़ा उसमें दे दिया क्या? स्ट्रेंथनिंग. अब करेंगे निरालंबासन. निरालंबासन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो बोला जाएगा आपको पोजीशन. दिस इज कॉल्ड पोजीशन. गेट रेडी फॉर निरालंबासना. देखिए, तो ये हुआ निरालंबा. दिस इज गेटिंग रेडी फॉर निरालंबासना. अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है? दिस वाज पोजीशन.
Get ready for Nidalambhasana. Go to Nidalambhasana. This is Nidalambhasana. ठीक है, देखा निरालंबासना को? यस नो? हाँ जी यस. हाँ, निरालंबासना जैसे this is, let's say, relaxative pose. Position. Get ready for Niralambhasana. Make Niralambhasana. This position called Niralambhasana. And then you have to stretch up and you try to keep your elbow forward maximum, like this. ठीक है? निरालंबासना. पीछे पैर ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे. Like over. And you have to keep your elbow forward, maximum possible. Stretch out. And then इसको यहाँ पे रख दो. अब बोल नहीं पाओगे. You can't speak here. Okay, this is very good for thyroid, neck, shoulder glide, shoulder muscles. यहाँ पे आप बोल नहीं सकते हो, देखा ना आपने? It is such a test. This is called Niralambhasana. When I say release means this is release. When I say position, relax. But when I want you to make relax, release and relax. So from here, release and relax. Straight away, no position. So when we say release, position means I want to make you some different asana or I want to repeat the same asana. But if I say release and relax, means I want you to change the asanas. Okay? Release, relax, position, release, relax, position. Understand the terminologies for the instructions. So, once we say relax, go to Makarasana. After Makarasana, now next asana is Sarpasana. देखो Sarpasana कैसे करते हैं? So, I can give you instructions. Position. This is position. Now, get ready for Sarpasana. This is the get ready postures for Sarpasana. Now slowly make Sarpasana. तो Sarpasana के लिए यहाँ पे ऐसे करेंगे और पूरे ऐसे. This is Sarpasana. So आपका navel area जो है वो navel area से उठा रहेगा. Chest will be not touching on the ground. पूरा उठा रहेगा chest. आपका navel से उठ जाएगा body. So यहाँ पे you can take help of your hand. ठीक है, हाथ का यहाँ तक सहारा लीजिए और यहाँ से छोड़ दीजिए. This is Sarpasana. पीछे पैर फैला नहीं रहेगा, पीछे पैर मुड़े रहेंगे. See, पैर मुड़े हुए हैं ना? पैर legs are joints, right? This is called Sarpasana. Release. Release means this is release. One more round. Release. Relax. Okay? Understood? So this is Sarpasana. Next we can do coordination. समन्वय आसना. समन्वय आसना कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन. देखिए कोऑर्डिनेशन में let's say you are in Makarasana. You are in Makarasana.
This is relaxating pose, Makarasana. Now, position. Get ready for coordination. This is the ready position for coordination. Let's do coordination. So coordination में क्या होगा? दोनों पैर आधी फीट 1 फीट की दूरी पे, दोनों हाथ आधी फीट 1 फीट की दूरी पे, और क्या करना होता है? लेफ्ट लेग उठाना, राइट हैंड लेफ्ट लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? दिस इज कोऑर्डिनेशन. आपने समझा? नहीं समझा? आज वो कहाँ है? वेयर इज शी? एक शर्मा जी कहाँ है आज? शिल्पा शर्मा नहीं आई आज. ओके, सो ये कोऑर्डिनेशन था. आप समझ गए? नहीं समझे? उसमें हेड शुड टच, ईच टाइम योर हेड शुड टच ऑन द ग्राउंड. ईच टाइम योर हेड विल टच ऑन द ग्राउंड. चलो, हाँ, गुड, वेरी गुड. हाँ, ठीक है. Each time your head will go to the ground. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. मैं दिग्वासा जी का वीडियो स्पॉटलाइट पे देता हूँ, देख लीजिए. Each time your head should go. And एक चीज और दिग्वासा जी, your head should touch with the ear. Sorry. Your ear should touch with the right muscle. Sorry. आपके आर्म्स मसल से ईयर, कान को टच रहना चाहिए. एंड देन यू रेज राइट लेग, राइट हैंड. हाँ, ओके, ठीक है. अब समझिए, परफेक्ट है. ईच टाइम इफ यू आर रेजिंग राइट हैंड, योर हेड विल बी aligned with the right ear. If you are raising with the left hand, your ear will align with the left hands. ठीक है, परफेक्ट. This is called coordination. इससे क्या होता है? आपका दायां और बायां जो नाड़ी है उसका बैलेंसिंग होता है. योर yin yang बैलेंस होता है, ठीक है. ईडा पिंगला बैलेंस होता है. इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. समन्वय आसना, समन्वय आसना, ठीक है. अब मैं कहता हूं रिलीज एंड रिलैक्स. सो नाउ इट इज रिलीज एंड रिलैक्स. Now I'm telling you position. Position. No, position वो नहीं, हाथ को नीचे करना होता है पोजीशन में. हाँ, this is called position. Both legs together. अच्छा. Next practice is salabhasana. तो salabhasana के लिए क्या करते हैं? Forehead on the ground. Forehead on the ground. Forehead. Yes. Lift up both legs. Join your toes. Join your heel. Hands position will be the same way. Lift up both legs. See, this is Salabhasana. Locust pose. Forehead on the ground. This is Salabhasana. Initially, if you are not able to lift up your thighs, then you can take support of your palm. अपने palm का support ले लो. हाथ का support लेके उठाइए. मंगल जी, और हाथ का सपोर्ट लेके उठाइए पीछे, ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रैक्टिस, रिलीज. रिलीज. नाउ गेट रेडी फॉर धनुरासना. तो धनुरासना के लिए रेडी कैसे होंगे? हाँ, फोल्ड योर लेग, फोल्ड योर, हाँ, दिस इज कॉल्ड गेट रेडी. सो व्हेन वी से पोजीशन, नाउ गेट रेडी, नाउ गो टू धनुरासना. करेक्ट. लिफ्ट अप द थाइज. अपने हाथ को जॉइंट्स पे पकड़ो, एंकल जॉइंट्स पे पकड़ो, नॉट ऑन द phalanges. एंकल जॉइंट से पकड़ो. होल्ड योर hands on the ankle joints. Try to lift up
thighs and abdomen both, and whole body weight is on your pelvic bone. तो मैं यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस हो रहा है मंगल पांडे जी का. लेट्स सी द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ मंगल पांडे जी. गुड. मंगल पांडे जी, और आप अपने थाइस को उठाइए. बहुत बढ़िया. अब देखिए ये थाइस एंड इनका एब्डोमेन, होल बॉडी वेट इज ऑन द pelvic zone. This is perfect practice of release and relax. So ये जो है अभी आपने देखा, this is धनुरासना. ठीक है ना? Release and relax. ये क्या कर रही है पद्मा माता जी? हेड को नीचे करो, forehead on the ground. Each time forehead on the ground, up and down like that. हाँ, good. और ऊपर देखना है. जब आप ऊपर उठते हो तो ऊपर देखना है. That's why then only you can move up more. इसमें भी स्ट्रेचिंग होती है. हम लोग क्या करते हैं, दोनों पैर और दोनों हाथ, एक पैर और एक हाथ को ऐसे उठा देते हैं डायगोनली. तो इसमें भी बैक बेंडिंग स्ट्रेचिंग होती है. आप समझे क्या? ये स्ट्रेचिंग हम आपको आई शैल शो यू सम अदर डे. मैं अपनी बॉडी पे स्ट्रेचिंग करके दिखाऊंगा कैसे स्ट्रेचिंग लेते हैं. यू ऑल कैन टेक स्ट्रेचिंग. तो इसके अंदर बैक बेंडिंग को खोलने के लिए भी स्ट्रेचिंग होता है, वो हम बताएंगे आपको. लास्ट प्रैक्टिस इन प्रोन लाइन वी विल डू नौकासना. सो टेक पोजीशन, गेट रेडी फॉर, टेक पोजीशन. नो, दिस इज नॉट पोजीशन. पोजीशन हाथ नीचे, हैंड्स डाउन, पोजीशन. यस. नाउ गेट रेडी फॉर नौकासना. सो गेट रेडी मतलब हाथ को आगे कर दो. That is it, getting ready. Now go to Naukasana. Now raise your both leg and both hands up. Now when you are making Naukasana, try to lock your fingers. इस प्रकार से लॉक कीजिए अपने फिंगर्स को. ठीक है? आपको नहीं दिख रहा है मेरा वीडियो, मैं स्पॉटलाइट पे दिखा रहा हूँ. देखिए इस प्रकार से लॉक कीजिए अपने फिंगर्स को एंड देन रेज अप. ठीक है? ऐसे लॉक कीजिए, then raise up. Good. Raise your thighs. आपका कर्व बनना चाहिए, ऐसे कर्व बनना चाहिए. मैं आपको बता रहा हूं more or less. आप जानी माता जी का देखिए. जानी माता जी, मैं one more time देखिए. Look at her. Okay. Now I want you to raise thighs more. Okay. So your body should be tub, you know, in a bowl shape. ठीक है? Your body should be in a bowl shape. So यहाँ किसका बेस्ट प्रैक्टिस हो रहा है? मैं स्पॉटलाइट करता हूँ. Let's make everyone and I will spotlight. और ऊपर देखिए, नजर ऊपर देखिए, नजर को ऊपर रखिए. बहुत बढ़िया. नजर को ऊपर रखिए. आपके दृष्टि के पास में होना चाहिए. अब साकेत जी का देखिए, आपको दृष्टि के पास में होना चाहिए. ठीक है? आप देख रहे हैं ताई साकेत जी उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं. और बहुत बढ़िया. ठीक है? थोड़ा सा हाथ और ऊपर करो. और साकेत जी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया. ओके, डन. फर्स्ट क्लास. सो दिस इज रिलीज एंड रिलैक्स. Release and relax. Relax from the right side, left side. Okay. Now just sit down. अब यहाँ पे बैठने का तरीका क्या है? बैठने का तरीका, फर्स्ट यू शुड कम. ठीक है? या तो साइड लेट जाओ, साइड लेट के बैठ जाओ, या फिर यू गो टू शशांक आसन, देन यू सिट डाउन. ठीक है? या तो फिर साइड में लेट जाओ, लेफ्ट साइड एंड देन सिट डाउन लाइक दैट. तो आपने देखा, नाम लिख लिया, ऑनलाइन के आसनास के नाम लिख लिया. क्या क्या, कौन कौन से? कैन somebody just unmute and repeat the ऑनलाइन नेम ऑफ द ऑनलाइन आसनास? पहले मकर आसना,
then Shashank asana and Bhujanga asana, Niralamba asana, Sarpa asana, Samanvay asana, Salabhasana, Dhanurasana, Naukasana, then last Shata. भुजंगासन भूल के लिखना। नहीं लिखा ना प्रभु जी, शशांक आसना के बाद भुजंगासना। ओके ओके। एक और आसना था मर्जरी आसन। मर्जरी आसन वो हम कल करेंगे। और मर्जरी आसन जब हम करते हैं ना भुजंगासन और शशांकासन, उसी के बीच में होता है मर्जरी आसन, मार्जरी आसन, कैट एंड कैमल। टेबल टॉप पोज में जाते हैं, कैट कैमल, ठीक है। तो हम इसको कल करेंगे। तो ये प्रोनलाइन आसनास है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। नाउ लिसन केयरफुली। द टीचिंग टेक्निक ऑफ hatha is a very simple. Teaching technique of hatha is very simple, though it seems to be, but it's very simple. कैसे? आपको क्या क्या ध्यान देना है? Suppose if your student is new and they do not know the asana, then what you have to do is quickly show them and tell them to practice. So you show them this is the way that you have to do the first step, second step, third step. Position, get ready for the position, go to asana. Okay? So there are 3 steps you have to control on. From relaxation, position, get ready for position and break the position. There are 3 steps. ठीक है नवीन जी? So first is position. A position is the baseline. That's home key. You know. टाइपिंग में देखते हो कहीं हाथ जाता है लेकिन हाथ बीच में आता है, होम की पे आता है, ठीक है। जैसे होम, आप कहीं भी उड़ो बीच में आना है, तो पोजीशन इज द प्लेस। सो यू हैव टू टेक पोजीशन एंड देन गेट रेडी फॉर XYZ पोजीशन। सो दे विल गो टू एंड देन मेक इट। दैट्स इट। कुछ नहीं करना होता है। हठ योगा में बहुत इजी है कि आप लोगों का आंख बंद करवा दीजिए और बातें कम होनी चाहिए। हठ योगा का एक बहुत क्वालिटी होता है कि देयर इज साइलेंट योगा होता है। हठ योगा में टीचर भी ज्यादा बक 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 नहीं करता है रामदेव जी की तरह या माधव दास की तरह, ठीक है। टीचर बक बक नहीं करता है, वो आएगा क्लास में, हम आपको प्रोफेशनली हाथ, हम जब पूरा हाथ अभी पूरा आसन करा देंगे ना तो हम प्रोफेशनली हाथ लेंगे, जैसे हम केवल धाम में हम लोग लिया करते थे। तो उसमें आए प्राणायाम हो गया अपना, क्या बोलते हैं, प्रेयर, लाई डाउन, रिलैक्स, position for Naukasana, go to Naukasana, keep breathing and out, चुप, 1 मिनट टाइम देखो, चुप रहो, आसन पे छोड़ दो लोगों को, रिलीज, get ready for XYZ asana, go to XYZ asana, keep breathing and hold, chup, after 1 minute release and relax. Are you getting a point? Simple instruction. और 1 घंटा 2 घंटा तक पूरी क्लास 200 बच्चों के साथ आप कराओगे ना, थोड़ी सी भी क्राउड नहीं होती है। When you are taking a group class, crowd जो बातें होते हैं चर्पिंग, ए तू कैसे कर रहे, सही कर गुरुजी वो सही नहीं कर रहा है, अरे भाई तू अपना कर ले। कुछ बच्चे नटखट होते हैं क्लास में, अपना नहीं करेंगे दूसरे का देखेंगे, अपनी गलती नहीं दिखती है दूसरे की गलती दिखती है। तो हाउ टू कंट्रोल ग्रुप क्लास इज, पहले नेवर अलाउ स्टूडेंट टू ओपन देयर माउथ इन द क्लास। बच्चों को मुंह नहीं खोलने दिया जाना चाहिए। जो आसन है उसको हम करके दिखाते हैं और आप
आपको लगता है कि दिस इज अ न्यू क्लास, दिस इज अ न्यू आसना, स्टूडेंट नया है या आसन नया है, तो एक बार करके दिखा दीजिए फट से लेट के, उस बार आप बैठ जाइए। नाउ यू डू। या अगर आपके ग्रुप में मिक्स स्टूडेंट है, नए पुराने स्टूडेंट है, तो किसी पुराने स्टूडेंट का स्पॉटलाइट वीडियो को डाल दो और उसको बोलो करने के लिए, और वो करेंगे, बाकी को सिखा दो, एंड देन बाकी को प्रैक्टिस कराओ। अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो किसी एक स्टूडेंट को पिक कीजिए और सामने बिठाइए, जैसे ये अगर टीचर का यहाँ पे लाइए और आप बोलिए डू दिस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को अगर बहुत ज्यादा चर्पिंग करने दोगे तो वो मछली बाजार बन जाएगा, योगा क्लास मछली बाजार बन जाता है, फिर पार्क योगा होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा मेंटेन साइलेंस। अगर किसी को कुछ पूछना है तो सीधा हाथ खड़ा करे और इंस्ट्रक्टर उसके पास जाए, कान में सुने क्या प्रॉब्लम है आपको। जैसे ही साउंड वाइब्रेट होगा सबका अटेंशन लूज हो जाएगा। और हठ योगा 3 घंटे की प्रैक्टिस होती रहती है और आपको पता नहीं चलता है, आपका माइंड एंड बॉडी दोनों इतना अलाइन खो गया रहता है कि पता ही नहीं चलता हठ योगा कब 3 घंटा पास हो गया। तो ऐसा होता है कि कंप्लीट साइलेंस, नो मूवमेंट, नो टॉक, नो चर्पिंग, नो बर्पिंग, नथिंग। तो कुछ रूल्स पहले ही दे देना चाहिए। क्या? शट अप, लिसन, डू। इफ यू वांट टू आस्क, रेज योर हैंड, and then instructor should go to them and hear the problem in their ear, and there only try to solve, or else you come back and show this. Are you getting your point, Aminji? So that is the discipline to be maintained in the class, hatha class. No too much talking, no too much explaining. If you want to explain, there is a way to explain. I'll tell you. Let's say I'm just acting, ड्रामा कर रहा हूँ मैं, थोड़ा एक्टिंग करके दिखाता हूँ। If you want to explain something, तो कैसे करेंगे? Take position, get ready for धनुरासना। तो सभी बच्चे गेट रेडी हो जाएंगे ना। सभी बच्चों को जब देख लो सब पोजीशन पे आ गए, पकड़ लिया टांग हाथ को पीछे, गेट रेडी हो गए। नाउ go and take position for make dhanurasana and hold, keep breathing. अब क्या हुआ, आपने होल्ड करा दिया 1 मिनट के लिए। आपको कुछ देना है तो वहीं बोल दीजिए, दिस इज वेरी गुड इंस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी गुड फॉर योर बैक, यह आपके कमर के लिए बहुत ही अच्छी आसना, good for your thyroid, good to open the vertebra. It's all inverted back bending postures, very healthy and important cultural postures. अब बोलते बोलते 1 मिनट खत्म, रिलीज। ओके, सो जो 1 मिनट जो होल्डिंग है ना, उसी में आपको पास करना है इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी क्विक, शुड नॉट बी लाउड, इट विल बी स्मूथ, ताकि कॉन्शियसनेस, चित्त को डिस्टर्ब ना करे। यह आसन आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करने से आपकी पेट 6 पैक बन जाएगा। ऐसा मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो बीच में ही देना है, रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स के समय में कोई इंस्ट्रक्शन ना दो, रिलैक्स करने दो। जब पोजीशन में चला गया तो आप कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो बेस्ट टीचर डोंट टॉक एनीथिंग, वो चुपचाप बैठ जाएगा। 1 मिनट हो गया, रिलीज, रिलैक्स। And I'll tell you one thing, if you take the class silently, closed eye, and let your student follow, at the end of the class, when you make them sit, Om Shanti, 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 open your eyes, rub your palm, put on, open the eyes, वो फील करेगा, पता है कहां से आ रहा है, अभी स्वर्गलोक से उतर के आ रहा है। मतलब इतने आराम, रिलैक्स से वो आ रहा है। होल साइकोफिजियोलॉजी गॉट शांत, काम,
This is the purpose of Hatha Yoga, psychophysiology relaxation. Not only physio, psychophysio relaxation is the purpose of Hatha Yoga. So Hatha Yoga को आप डायनामिक नहीं ले सकते हैं. आपको डायनामिक लेना है तो उसमें बोल दीजिए. इसको 3 बार रिपीट करेंगे. We will repeat 3 times this. 1, repeat 2, repeat 3, relax. ये नहीं 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं. This is not like gym style, okay? So if you want to repeat, you can repeat with a very moderate sound, moderate. ये acting की बहुत जरूरी है. You need to be act. आपके आवाज से your instruction should go not only instruction but peace in mind, calmness in mind. Are you getting the point, नवीन जी? आप सब समझ रहे हो ना? जानी माता जी, पद्मा माता जी तो पता नहीं कहाँ ये कहाँ मिक्सी उक्सी दिखा रही है. पद्मा माता जी, अच्छा किचन में हो. ये क्या दिख रहा है? मिक्सी, ओवन. मैं ओवन कल ही मना किया था, अब ओवन मुझे दिखा रहे हो. तो मैं क्या कह रहा था कि Hatha Yoga instruction is not yoga instruction, but you are passing with your instruction peace, harmony, relaxation. You know, आपको रसगुल्ला नहीं खिलाना है, लेकिन मुंह से ऐसे बोलो कि बस रसगुल्ला ही आप भेज रहे हो. आप समझिए ना भावनाओं को. तब जाके कंप्लीट रिलैक्सेशन. और करने के बाद ऐसी योगा शरीर, मन, आत्मा तीनों को तृप्त करता है. तो हम लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे हठ योगा. तो हठ योगा क्लास रिक्वायर मोर. और कुछ लोग they don't, because of this they don't like hatha yoga. Many people especially in the west countries और यहाँ इंडिया में भी हठ योग को लोग, हठ योग क्लास को लोग लाइक नहीं करते. पता है क्यों? क्योंकि उनको चाहिए म्यूजिक, डिस्कम. वो आया ना जिम करके, यू नो, तो दे फील समथिंग, यू नो, थोड़ा सा इको होना चाहिए. क्राम, यू नो, बंदर चाल, 1 हेड टू टोज, लेफ्ट डाउन, 2 3. एक टीचर था अभी रिसेंटली दुबई में, एक जिस स्टूडियो में योगा टीचर ट्रेनिंग लिया, उसका एक टीचर था, उसका नाम था पीटर. वहां से क्या बोलते हैं उसको, केरला का था. पता है, जब मैं बाहर खड़ा रहता था रिसेप्शन पे, तो अंदर से क्लास की आवाज आती थी और ऐसा लगता था कि कोई, क्या बोलते हैं वो, कोई जिम मास्टर हो. रिलीज. नाउ अगेन टेक पोजीशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलीज. टेक मोर, one more time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now we'll do this practice. Start. 1 2 3 4 5. हे भगवान, मैंने कहा ये क्या हो रहा है अंदर में? बंदर चाल है क्या? तो people are so passionate. मतलब पैशनेट समझते हो ना, रजगुणता. उनको शांति पसंद नहीं है. योग का उद्देश्य शांति है, मन की शांति, शरीर की शांति, आत्मा की शांति. तो इसे हठ योगा प्रैक्टिस इज रियली बेस्ट प्रैक्टिस. अष्टांगा योगा प्रैक्टिस भी होता है. आपने देखा है ना, गुरुजी कितना कम बात करते हैं अष्टांगा योगा में. आपने देखा ना, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि. वो भी अच्छा लगता है ना. जो गुरु जी का देखा आपने, वो के पटाभी जय जी का, आपने देखा साकेत प्रभु जी कितना गंभीरता से इनहेल. Isn't it? Have you seen? किसने नहीं देखा है उस वीडियो? किसने नहीं देखा है? अरे ये तेल डाल रही है मेरे सामने. कौन सा तेल डाल रही है? हम पानी डालने को बोलते हैं, आप तेल डाल रही है. सारा वाट लगा रही है हमारी इंस्ट्रक्शन का.
मैंने कहा था तेल को फेंको, उसे पानी डालो ताकि गलती से ही पानी ही पड़े। नहीं नहीं प्रभु जी, एक्चुअली क्या है, देखिए मैं स्टीमर में कर रही हूँ, ये स्टीमर है, हाँ, अभी स्टीमर में ज्यादा यूज कर रही हूँ। देखिए ऐसा भिंडी को स्टीमर में कर दिया, लेकिन थोड़ा तड़का देना पड़ता है, नहीं तो फैमिली को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तड़का देना पड़ता है इसके ठीक है। लिए। तो हाँ आजकल मैं ज्यादा से ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। सो अब हम क्या करते हैं, आज हमने हथ योगा के टीचिंग मेथोडोलॉजी को समझा। सर नहीं समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? समझा ना? हाँ, तो क्लास वैसे ही लेंगे भी, वैसी क्लास लेने की प्रैक्टिस भी करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है ना? और आप कभी भी ओल्ड एज योगा में खासकर जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हथा प्रैक्टिस चाहिए होता है, बहुत सारे पेशेंट को हथा प्रैक्टिस चाहिए, तो उस तरीके से प्रैक्टिस देना पड़ेगा आपको। तो प्रोन लाइन के आसन भी कल हम ऐड करेंगे। लेट्स हैव अ 5 minutes break and then today I will finish in half an hour the philosophy which we left over. हमें आज सिर्फ 6 फिलोसफी के बारे में बताना है कि किसमें क्या है, उसके बाद आज की क्लास फिनिश। तो लेट्स हैव 5 minutes break। मैं जाता हूँ बाहर अपने सीट पे, आप लोग भी पानी पीना हो तो पी सकते हो।
ठीक है, तो हम वापस स्टार्ट करते हैं। सो हरे कृष्ण कृष्ण तो हम षट दर्शन में सब आगे नहीं आए। षट दर्शन में हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिलॉसफी और डिफरेंट फिलॉसफी में इसको बंद करना, जरा कूलर बंद करना, आवाज आ रही, बंद करो। तो ये जो 6 फिलॉसफी है जिसको हमने जानना है, विच वाज अ हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी, जो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी। हेटेरोडॉक्स में तो कोई आत्मा परमात्मा का मतलब ही नहीं है, दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग। सो यहाँ पर अब क्या होता है, सांख्य फिलॉसफी देखिए, सांख्य फिलॉसफी का जो रियलिटी है वो है कि टू, रियलिटी इज टू, इट्स अ द्वैत, लाइक a पुरुष and prakriti. Position of the Atma is Purusha. Number of souls, they believe many souls. Consciousness, it's pure consciousness. Material elements, they believe 24 elements of Prakriti and 1 conscious elements, total 25. So 24 elements of Prakriti and 1 conscious elements. So total 25 elements. ठीक है? Now goal is liberation, separation, and method of attainment is dhyana. Method of attainment is dhyana. Source of knowledge is the shastra, perception, testimony, inferences. So यहाँ पर सांख्य फिलॉसफी में position of the god is परम पुरुष, परम पुरुष या पुरुषोत्तम, लॉर्ड, ठीक है? दिस इज द पोजीशन इन सांख्य योगा. या पोजीशन ऑफ द गॉड इज लाइक भगवान. See, there are two things. There is a Bhagavana and Ishwara. There is two words generally you will see in the Shastra. Bhagavan Vacha. Then other time it will be Ishwar Vacha. है कि नहीं? तो जब भगवान के अलावा कोई बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ईश्वर वाचा. जैसे कोई किसी पुराण में देखोगे, अगर 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 लॉर्ड शिवा कुछ बोलते हैं तो व्हाट दे से, ईश्वर वाचा, नहीं. लेकिन भगवद गीता में या भागवतम में अगर भगवान कुछ बोलते हैं तो भगवान वाच, है ना? तो पोजीशन ऑफ द गॉड इज भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुष. दिस इज द पोजीशन ऑफ द गॉड इन सांख्य फिलॉसफी. ठीक है? तो आपने देख लिया, देयर इज अ टू सांख्य फिलॉसफी बेस्ड ऑन द टू रियलिटी. The real is the Purusha also real and Prakriti also real. Position of the Atma is the Purusha Tattva. Number of soul is many soul. जैसे you and me, many souls are there, isn't it? हम लोग कितने soul हैं? All are the individual living entity. All living entity are the soul. So Sankhya says the many soul.
अब हम देखते हैं योगा फिलॉसफी। ये जो सांख्य फिलॉसफी, आफ्टर नेक्स्ट सेकेंड वाज द योगा फिलॉसफी। योगा फिलॉसफी प्रभु जी सांख्य फिलोसफी में ये मिनी सोल्स को प्रकृति में रखते हैं प्रभु जी या पुरुष में रखते हैं? किसको? मिनी सोल्स को, मिनी सोल्स, सोल्स, सोल आवर सेल्स, हाँ सोल पुरुष में रखते हैं। पुरुष में रखते हैं। पुरुष तो तत्व, परम पुरुष भी पुरुष है प्रभु जी, और हम लोग भी, हमारी जो सोल है वो भी पुरुष में आती है। पुरुष तत्व का ही अंश है। भगवान कहते हैं ना, मोहि वांसो जीवलोक जी, जी। जीवभूतः सनातनः मनस्य स्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सो पुरुष तत्व ही का ही अंश है जी, ना। ये सब हमारे ही अंश हैं। तो परम पुरुष का अंश पुरुष ही हो सकता है ना, पुरुष का अंश प्रकृति नहीं हो सकता। हम प्रकृति है ही नहीं, इसलिए हमारा प्रकृति जगत में हमारा घर नहीं है। दिस इज अ टेम्पररी फॉर अस। ओके, आगे देखिए योगा फिलॉसफी जान लीजिए। हमें 6 फिलॉसफी के बारे में जानना है। योगा फिलॉसफी में आपको मालूम है, रियलिटी में दे बिलीव इन ट्रिनिटी। इन योगा फिलॉसफी दे बिलीव इन ट्रिनिटी। ट्रिनिटी क्या मानते हैं वो? ट्रिनिटी दे बिलीव ब्रह्मा विष्णु महेश, you know, Brahma Vishnu Mahesh. This kind of Trinity they believe. The God position of God is Trinity, Brahma Vishnu Mahesh. तो आप समझ रहे हो आप, जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कौन सी फिलॉसफी से है? योगा फिलॉसफी से है। सांख्य फिलॉसफी से क्या है? श्री कृष्ण भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है। अद्वैत मतलब अद्वैत मतलब एको वयम द्वितीयो नास्ति, कहते ना, एको वयम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ, दूसरा मेरे पैरेलल कोई नहीं है। उसी को मुस्लिम लोग कहते हैं अल्लाह, अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह से ऊपर कोई है ही नहीं। तो सांख्य फिलॉसफी का ही ये थ्योरी है, बिलीविंग इन वननेस, दिस इज द वननेस। बट इन योगा फिलॉसफी में इट्स नॉट वन, इट्स द 3 रियलिटी। ठीक है, इन योगा दे से पुरुष, प्रकृति एंड आत्मा, और they indicate position of the god is Brahma, Vishnu or Mahesh, Trinity. In yoga philosophy also, the position of Atma believes Purusha, number of souls again the many, consciousness is yes, pure consciousness, material elements is again 25. ठीक है, position of God in yoga is what, you know? What is the position of God in yoga? You know, position of God in yoga is no. That is the reality. Trinity is the reality, real. But position of God is not Purushottam Bhagavan, but they say special Ishvara, Ishvara Vishesha. आपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था ना, ईश्वर विशेष है कि नहीं? जो अनादि है, अनंत है, जो सबका गुरु है, जिसके लिए कुछ कार्य करने योग्य नहीं है, पुरुष विशेष है। तो पोजीशन ऑफ गॉड बताया गया है, पुरुष विशेष है। तो पुरुष है, बट देन पुरुष में पुरुष विशेष को ईश्वर माना गया है। भगवान की पोजीशन मतलब गॉड की पोजीशन बताया गया है इसके अंदर, इसमें योग फिलॉसफी के अंदर में। योगा फिलॉसफी इज मच सिमिलर टू द फिलॉसफी ऑफ सांख्य। सोर्स ऑफ नॉलेज वही है जो सांख्य का है, सेम। द स्टेटस इज ऑर्थोडॉक्स, द गोल इज अगेन लिबरेशन, सेपरेशन फ्रॉम द मैटर, and method of attainment is again dhyana, the same method of attainment is also dhyana. So आप देख रहे कि अगर देखोगे तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स सांख्य से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? तो इट इज as equals to सांख्य योग ओनली। अब देखो नेक्स्ट, देखिए न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी में वो लोग कहते हैं रियलिटी, वास्तविकता अनेक है, रियलिटी इज मेनी, दे बिलीव। पोजीशन ऑफ आत्मा इज द सब्सटेंस विच इज नॉट एसेंशियली कॉन्शियस, दैट दे बिलीव। आत्मा के बारे में न्याय फिलॉसफी मानती है कि दिस इज जस्ट अ सब्सटेंस
which has not, which is not essentially conscious. तो आत्मा को वो प्योर नहीं मानते. Number of soul, again many. Consciousness, accidentally quality of soul. Accidental quality of soul. Accidental quality of soul मतलब आकस्मिक उनको सोल की जो गुणवत्ता है वो अगर दिख जाए, that is a consciousness. उनके लिए material elements क्या है मालूम है? Only 6. They say earth, water, fire, air, ether, time, space, soul and mind. So 1, 2, 3, 4. Earth, water, fire, air, ether. 5 element हो गया. And 4 space, time and mind. They believe material elements are only 9. 9 material elements. Water, ether, fire, air. Water, ether, fire, air, earth, time, space, soul and mind. This is basically, they say, the material composition. Material elements. Material elements means the composition of all the material world, including you and me. And you and me means our body. Position of God, they say it's the efficient cause. Yes, they believe the God, they believe in God, and they are thinking that because of efficiency of the God only. Source of knowledge is again the Veda. Orthodox, goal of life is again liberation. A method of attainment is dhyana only. तो इसका भी अटेनमेंट मेथड जो है वो ध्यान ही है. तो जितने भी हिट्रोडॉक्स होगा ना, ऑर्थोडॉक्स होगा, उस सबका सोर्स ऑफ नॉलेज वेद ही होगा. अदरवाइज वो ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकता है, वो हिट्रोडॉक्स में चला जाएगा. हिट्रोडॉक्स को क्या बोलते हैं मालूम है? उसको हिट्रोडॉक्स बोलते हैं, हिट्रोडॉक्स को क्या बोलते हैं? नास्तिकवाद. नास्तिक. हाँ, और ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं आस्तिकवाद. तो बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं वैशेषिका में भी. वैशेषिका एंड न्याय में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, बिकॉज वैशेषिका में भी मटेरियल एलिमेंट्स 9 है. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, सोल एंड स्पेस. उसमें भी नंबर ऑफ सोल मेनी है. आत्मा के कॉन्सेप्ट भी उसका वही है, कॉन्शियस भी वही है, पोजीशन ऑफ गॉड को मानते ही हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज को भी मानते हैं वेदा, इसका भी स्टेटस ऑर्थोडॉक्स है, गोल लिबरेशन है. लेकिन मेथड ऑफ अटेनमेंट जो है इनका योगिक मेथड है. तो वैशेषिका और नया स्कूल जो है क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि मेटाफिजिकल थ्योरी जो है उन दोनों का एक होता है. इसलिए न्याय they differ as has accepted the 4 sources of valid knowledge of Vaisheshika except only 2. दोनों में अंतर क्या है? जो 4 नॉलेज ऑफ सोर्स है वो एक्सेप्ट करता है हमारा पिछला न्याय, बट वैशेषिका में सिर्फ 2 को, परसेप्शन एंड इंटरफेरेंस. मतलब इसमें क्या है कि अनुभूति, आपके अपना ओन एक्सपीरियंस. दे थिंक द सोर्स ऑफ नॉलेज इज योर ओन एक्सपीरियंस. आत्म अनुभूति. कुछ लोग कहते नहीं है कि अरे आपको क्या अनुभव हो रहा है वही सत्य है, बाकी क्या लिखा है छोड़ो, आपको क्या अनुभूति हो रहा है? अरे हमें तो अनुभूति हो रहा है दारू बढ़िया है, तो दारू बढ़िया है. हर किसी का अनुभूति अलग अलग हो सकता है. तो ये जो है ना, इसलिए ये जो थ्योरी है, आपको मालूम है बहुत सारे लोग बाहर मार्केट में मन चले लोग बोलेंगे अरे व्हाई यू आर बिलीविंग इन ऑल दिस, यू जस्ट आप खाओ पियो, अपना अनुभव करो, जो आपको अनुभूति हो रही है वही सत्य है. तो आप हु आर यू टू डू अनुभूति? अनुभूति करने वाले होते कौन है हम? कितना ज्ञान है अनुभूति करने के लिए, कितनी शुद्धता है अनुभूति करने के लिए? तो जितनी गंदगी है उसी गंदगी से अनुभूति कर लेंगे तो उसी को रियल ज्ञान मान लेते हैं. इसलिए दे आर लॉस्ट, क्योंकि दे बेस ऑन द सेल्फ रियलाइजेशन. आपको अपनी अनुभूति क्या है? आपको आपका परिस्थिति के मुताबिक किसी को एक व्यक्ति से आघात हुआ तो वो व्यक्ति उसके बारे में बुरा हो जाएगा उसके लिए, तो सत्य में वो बुरा तो नहीं है. तो इसलिए जो
आत्म अनुभूति के ऊपर चलते हैं वो ठोकर खाते हैं। इसलिए बेस्ट क्या होता है? शास्त्र और साधु। बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इज शास्त्र और साधु, not your own mental concoction, not our own experience. What is the quality? One can experience as per their education, as per their social status, as per their, है ना? But then that cannot be the ultimate truth and knowledge, source of knowledge. The source of knowledge is not the, हाँ बोलिए। आपने कहा शास्त्र और साधु। गुरुजी बहुत टाइम और बहुत लोगों को मैंने देखा है इतनी मतलब बुरी तरह फंसे हुए हैं फालतू बातों में, तो किससे पता चलेगी कौन सा शास्त्र सही है और कहाँ किस साधु के पास जाए? मतलब मैं खुद भी पहले आपको बोला ना भगवदगीता, एक शास्त्र भगवदगीता, और उसको जिस साधु ने लिखा है उसके पास जाइए। अब देखिए जो भगवदगीता, एक तो भगवदगीता पढ़ाने वाले दो लोग होते हैं, एक जो भगवान के भक्त होते हैं जो भगवदगीता पढ़ाते हैं, और एक जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो बस अपनी अहंकार को टू पैसिफाई द ईगो दे आर टीचिंग। सो पैसिफाइड ईगो है। मैं आपके साथ एक बार शेयर करूंगी लेकिन ग्रुप में नहीं, ठीक है? यू मे हैव गुड और बैड एक्सपीरियंस, बट देन समटाइम आपको भगवान भी टेस्ट करते हैं कुछ गंदे अनुभव दे करके कि आपकी अपनी स्थिति कैसी है, वेदर यू आर स्थित प्रज्ञ और नॉट, वेदर यू आर हवा से उड़ने वाले में तो नहीं हो या आप टिकने वाले में हो। आप मालूम है आंधी क्यों आती है? जितने भी कमजोर पौधे होते हैं सब गिर जाते हैं आंधी में, जो स्ट्रांग होते हैं वो खड़े रहते हैं। तो आंधी जो है ना किसी प्रकार से आता है कि भगवान आपको टेस्ट लेते रहते हैं कि कोई ऐसे मायावादी आपको भेज देगा, भक्त के रूप में कोई भेज देगा जो आपको गलत शिक्षा भी दे देगा, आपके विश्वास को तोड़ देगा, लेकिन आपकी अपनी विश्वास क्या है? तो यू शुड नॉट सेक, you should not, first you should go through the actual purport of श्रीमद् भगवद गीता। पहले यही धोखा खाते हैं भगवान के वाक्य को पहले, इसलिए भगवद गीता एज इट इज पढ़िए। एज इट इज पढ़ने के बाद अगर आप किसी क्लास को अटेंड करते हैं तो आप धोखा नहीं खाओगे। बस एक बार एज इट इज पढ़ लो, पेज नंबर 1 टू पेज नंबर लास्ट तक भगवद गीता एज इट इज। खासकर प्रस्तावना जरूर पढ़ लीजिए। प्रस्तावना में जो प्रभुपाद बोलते हैं ना, बड़ा कटु वर्ड बोलते हैं, है कि नहीं? अब बहुत अच्छे से समझाते हैं प्रस्तावना में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ करंट गुरु, शिष्य परंपरा, व्हाट इज द गुरु बिजनेस, ये सब बताते हैं। तो उसको आप एक बार पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद किसी का सुनिए तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब बिना उसको पढ़े हुए किसी से सुनेंगे तो डिफरेंस नजर नहीं आएगा, आपको पहचान में नहीं आएगा कौन गलत बोला है क्या सही बोल रहा है। तो फिर क्या होगा, आप टेम्परेरी आप उसके भरोसा कर लोगे, लेकिन जिस दिन चीटिंग करेगा आपकी भरोसा टूट जाएगी, तो उसकी वजह से आपके भरोसा भगवद गीता भी टूट जाएगा। प्रॉब्लम किसी और में है, लेकिन आपने गीता से भरोसा तोड़ लिया, भगवान से भरोसा तोड़ लिया। तो प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर था जो हमने वास्तविक को नहीं समझा। ठीक है, तो आप जो है ऐसे समझिए, बाद में बात करेंगे। तो ये जो है बहुत सारे लोगों का जो ये कहना है कि अपनी अनुभूति आप अनुभव करो, आपका अनुभव ही बेस्ट अनुभव है। जैसे विवेकानंद क्या है? विवेकानंद ने फिलॉसफी दिया है, क्या दिया? यू रियलाइज योरसेल्फ, यू फील व्हाटएवर यू फील बेस्ट फॉर यू, दैट इज गुड फॉर यू। दिस इज द वे? नो, this is not the way. All bullshit philosophy of Vivekananda, but he took it again from this Vaisesika. Vivekananda philosophy is a Vaisesic philosophy, Vaisesic philosophy. They believe source of knowledge is your own perception, and everyone has a different quality, educations, background, mental status. So if you take perception, then knowledge will be different. Then for you God will be something else, for me God will be something else, because my perception is different, your perception is different. So everyone will be lost. Vivekananda theory is completely nonsense theory, bullshit theory, I'll tell you. And Nyaya Vaisesika, again they also believe in the liberation. Vivekananda also advocates for the liberation. Nirvana, Buddha also advocates for the liberation, the stage you have to reach. But then last stage, most of the people, they believe common last stage. Only Charvak do not believe. Out of heterodox and orthodox, 6 and 2, 8, and then 1, 9. Out of 9, 1 Charvak, they don't believe in liberation, fibration. Okay? They don't see future and all. But rest 9, they believe. Jain also says, Jainism also believe in liberation, sort of thing. Buddha also talk about nirvana, which is liberation.
And all our orthodox philosophy is also saying liberation. So last liberation is being believed by all 8 philosophy, but not the 9th philosophy, which is चारवाक. वो लोग क्या बिलीव करते हैं मालूम है? लिबरेशन बिलीव नहीं करते हैं. वो बिलीव करते हैं कि मरने के बाद आपको एक जन्नत मिलेगी, जन्नत में 72 नूर मिलेंगे और उसके साथ एंजॉय करो अनलिमिटेड, और फिर वापस क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद कोई जवाब नहीं है. उसके बाद वापस भगवान फेंक देंगे, वो अल्लाह वापस नीचे लात मार के फेंकने वाले हैं. अब बेटा बड़ा एंजॉय कर लिया 72 नूर के साथ, नीचे जा, नीचे अब भुगत किया, तुम्हारी जितने अच्छे कार्य हैं ना वो खत्म हो गए. पुण्य कार्य खत्म हो जाते हैं तो स्वर्ग से वो नीचे आना पड़ता है. When you finish your good deeds, the fruits of good deeds, आपने लोगों को, गरीब को खाना खिलाया, प्यासों का पानी पिलाया, रोड पे आपने पेड़ लगा के लोगों को छाया दिया, पथिक को, किसी की मदद करी, किसी का नौकरी लगवाया, किसी का हेल्प कर दिया, किसी के बच्चे को कुछ कर दिया, तो कहने मतलब ये सब जो कार्य किया है पुण्य का कार्य है. ये सब पुण्य कार्य भुगतने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है. और जब आपके पुण्य कार्य का बैंक कोटा, when you finish your good deeds balance, then you have to come back to the earth. And if you have done something wrong deeds, then you have to go down and then take the curse, take the all this, finish your bad deeds, then you will come back to zero. So प्लस में जाओगे तो ऊपर जाओगे स्वर्ग में, माइनस में जाओगे तो नीचे जाओगे. ठीक है, और अपना अपना ये बैंक बैलेंस खत्म करके बीच में आओगे. फिर आप पुण्य करोगे ऊपर जाओगे, पाप करोगे नीचे जाओगे, तो ऊपर नीचे करते रहोगे. तो कर्म का जो फल है या तो पुण्य है या पाप है. इसलिए कर्म विकर्म, कर्म अकर्म. तो आप कर्म योग करेंगे ना, तभी जाकर के कर्म के फल का आसक्ति ना रखते हुए कर्म करेंगे, तब जाकर के वह कर्म आपको ना तो पुण्य देगा ना तो पाप देगा. नहीं तो पुण्य भी आपको खींच के ले जाएगा ऊपर, पाप ले जाएगा नीचे, ऊपर नीचे करते रहोगे. बीच में कभी आने का मौका मिलेगा ही नहीं. अगर मिल गया तो फिर भक्ति कर लेना, भक्ति करके वापस जाना पड़ेगा. ओनली वन योगा विच कैन टेक यू अप, विच इज भक्ति योगा. तो दैट इज फॉर दैट, बिकॉज इवन जो गॉड होते हैं ना, जो स्वर्ग लोक में जितने जीव होते हैं, जो अलग अलग डेमी गॉड्स का पोजीशन लेते हैं, वो सभी जीव को वापस पृथ्वी पे आना होता है, उसको डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करना होता है, देन दे कैन गो बैक टू गॉडहेड. They cannot go back to Godhead directly from the heaven. Heaven is made to just enjoy your senses, which you have accumulated out of the good deeds. पुण्य कर्मों से जो आपने अर्जित किए हुए आनंद और सुख है, वो भोगने के लिए जाते हो स्वर्ग में. समझे आप? तो ये फिलॉसफी वैशेषिक फिलॉसफी नहीं मानती है. विवेकानंद की फिलॉसफी ये सब नहीं मानता है, या परमहंस फिलॉसफी, योगानंदा की फिलॉसफी. तो कुछ योगी इसको मानते, कुछ योगी उसको मानते, कुछ योगी उसको मानते हैं. ठीक है, तो योगोदा जी की फिलॉसफी कुछ और मानते हैं वो. तो आपको कुछ सिमिलरिटी रहेगा, आपको लगेगा अरे सब तो आत्मा की बात करते हैं. एक कॉमन आदमी इसीलिए अरे सब तो आत्मा की बात करते हैं, सब तो वही बात करते हैं, रास्ते अनेक है मंजिल एक है. रास्ते अनेक है मंजिल एक है, ऐसे बोलते हैं ना लोग बाग. अरे किसी का भी कर लो, रास्ते तो अनेक है ही, किसी रास्ते पे चलो, मंजिल तो एक है ही. मंजिल एक है लिबरेशन, बट क्वालिटी ऑफ लिबरेशन में अंतर है. देन इनपुट में अंतर है, अंदर की प्रोसेसिंग में अंतर है. ठीक है, अब लिबरेशन में 2 लिबरेशन, टेम्पररी परमानेंट. कौन सी लिबरेशन चाहिए? कभी मनुष्य जन्म में ना हो, ये भी तो लिबरेशन है. मतलब जानवर में ही भटकते रहो, ये भी तो लिबरेशन ही है. लिबरेशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. This is also liberation. You never come in the human body. So either you go in the ghost body, reptile body, जानवर body, जो भी है ना, but don't come in human body. That is also liberation. So do you think that is a liberation? No. Liberation means no body. So some yoga, some philosophy, they think that getting out of the human body. But getting out of the human body, which body you will get? Definitely we get a different body. So they don't talk about a spiritual body. The spiritual body is talking only in Sankhya philosophy. A spiritual body के बारे में योग philosophy बात नहीं करता है, न्याय बात नहीं करता है.
वैशेषिक बात नहीं करता है, मीमांसा बात नहीं करता है, वेदांत बात नहीं करता है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ड सिर्फ आप कौन बात करता है? हाँ, Prabhuji, so all these, the entire, this orthodox, heterodox, all this, it is collectively found in which book actually? हाँ क्या? All this information, whatever you are talking, it is there in, it is mentioned in that Beyond the Illusion. Prabhupada जी का वो उसमें मिलेगा क्या? Yesterday you mentioned the book ना? प्रभुपाद जी ने हाँ इंडियन फिलोसफी के बारे में मेंशन किया हुआ है। यस, उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है। हाँ, आप नहीं, today whatever you are teaching now, Prabhuji, so what is the reference book for this? see, I have studied from my philosophy classes. Then Okay. then there is a Indian philosophy की एक बुक आती है, इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी एक बुक है बहुत मोटी, वो हम लोग को पढ़ना पड़ता था। तो उसके रेफरेंसेस कई उपनिषद से दिए गए और वहाँ रेफरेंसेस भी रहता है कि कहाँ से लिया गया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो इंडियन फिलोसफी की बुक है। अगर आप टाइप करोगे इंडियन फिलोसफी तो आपको कई सारे बुक्स मिलेंगे। तो यू कैन टेक ओनली इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में भी एक आता है ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफी। तो ऑर्थोडॉक्स में और डिटेल मिलेगा आपको। हेटेरोडॉक्स इंडियन फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफी, तो दो मोटे मोटे बुक हैं। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स में भी सांख्य फिलोसफी की अलग बुक मिलेगी। ऑर्थोडॉक्स सांख्य, ऑर्थोडॉक्स न्याय, ऑर्थोडॉक्स, ये सब अलग अलग ब्रांचेज है, इसके बुक्स अलग अलग हैं जो पूरा इन डिटेल डीप में जाएगा। अब जैसे मैं 24 एलिमेंट बोल रहा हूँ, 24 एलिमेंट का मैं पूरा नहीं डिटेल नहीं दे रहा हूँ ना। अब 24 एलिमेंट का पूरा कंपोजिशन, तन्मात्राएं, इफेक्ट, कॉज, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा वही, इसीलिए इतनी मोटी बुक बन जाती है। तो ज्ञान के जंगल में फंसना है तो फंसो, लेकिन बस ऊपर ऊपर जान लो, बाकी भजन करो, चांट हरे कृष्ण भी है। क्योंकि सिर्फ साधना में सांख्यों के अंदर भक्ति में भी ध्यान से भक्ति ध्यान योग। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बताते हैं। तो मतलब ये अंतर है। और मैं ये बताना चाह रहा था कि ना हम लोग बहुत सुनते हैं ना, बहुत सारे लॉजिक्स वो लोग देते रहते हैं, तो लॉजिक से ऊपर काम नहीं चलता। और लॉजिक और ये सब जितने भी सांख्य फिलोसफी के बाद जितनी फिलोसफी है, वो सब फिलोसफी से जो लिबरेशन है या जो फिलोसफी का पर्पस है, वो पर्पस बहुत डिफिकल्ट है एंड इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। It is close to impossible to get the purpose except the Sankhya philosophy. क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर। क्योंकि दे बिलीव इन लॉजिक, न्याय लॉजिक को बिलीव करता है। लॉजिक से किसी भी असत्य को सत्य प्रूफ किया जा सकता है। इन कोर्ट एक वकील लॉजिक से क्या करता है, अपराधी को छुड़वा देगा और जो अपराधी नहीं है उसको अंदर करवा देगा। तो इज दैट ट्रू? नहीं ना। तो वो लॉजिक ट्रू नहीं है, क्योंकि लॉजिक से आप निर्दोष को दोष साबित कर सकते हो, दोषी को निर्दोष साबित कर सकते हो। तो ऐसी इसमें इसलिए मिस्टेक्स है। वैशेषिक में मिस्टेक्स क्या है? ओन परसेप्शन को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। तो ओन परसेप्शन डिफरेंट होता है, ओन परसेप्शन इसके अच्छा नहीं होता है। समझे ना? तो हर जगह पे ऐसे ऐसे ड्रॉबैक्स है जहां से, इसलिए भगवान को आके सांख्य बोलना पड़ा। स्वयं को खुद से भगवान ने आके सांख्य की फिलॉसफी दिया, क्योंकि बाकी फिलॉसफी में, बाकी दर्शन में आप फंस जाओगे। ये जितने मुनि है ना, कनाद, जैमिनी, ये सब ने क्या किया मालूम है? सबने इल्यूजन पैदा किया। इवन शंकराचार्य भाष्य जो है, इसे माया भाष्य, इल्यूजनरी। नाउ यू विल से वाओ, शंकराचार्य को आप इल्यूजनरी बोलते हैं। तो यू हैव टू लिटिल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब कभी फाइनल एग्जाम होता है ना, लिबरेशन इज द फाइनल एग्जाम, कैवल्य इज अ फाइनल एग्जाम, एंड टू गेट द फाइनल एग्जाम you get hard questions. To filter the soul, they send all illusionary philosophers.
they sent all illusionary propagators like Sankaracharya, Jaimini, Kanada, Kapila. Sorry, it's not Kapila. Kapila was not Kapila, but other than the Kapila. Even not Patanjali. Patanjali तक तो ठीक है. कपिल के बाद पतंजलि, बिकॉज योग मार्ग से भी ठीक है हो, लेकिन बाकी के जो मार्ग हैं वो सब लॉस्ट है. तो क्या है, व्हाई दीज फिलोसफर हैज बीन सेंट टू क्रिएट द डुअलिटीज, क्रिएट द इल्यूजन, whether you are believing the satya or not, whether you believing the ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म की जिज्ञासा करने के बाद उस ब्रह्म पे आपकी चित्त स्थित है कि नहीं है. फॉर दैट दे हैव सेंट so many acharyas. Shankaracharya is one. Shankaracharya is the incarnation of Lord Shiva. Shankaracharya is incarnation of Lord Shiva, but still he has come to spread the illusion among the society, and this was been given instructions by the Lord Krishna, who is the Guru, who is the worshipable deity of Lord Shiva. This is, I'm not talking of this. Go to Padam Puran, part 2, chapter number 35, and conversation between Parvati and Shiva. In that, Shiva says, "O goddess Parvati, my Lord Krishna has ordered me to descend on the earth and create the Mayavada philosophy, illusionary philosophy." This is given in a Padam Puran, second part, chapter number 35, 36 देख लेना, शायद 35 या 36 में है. शिव पार्वती का जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा. लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ reveals that this philosophy is illusionary philosophy. ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको समझ लिया. तो बाकी जो फिलॉसफी है वो भी मच सिमिलर टू द ऐसे ही है जैसे वेदांता फिलॉसफी क्या करता है, वन, दे बिलीव ओनली ब्रह्मा. ठीक है, तो ब्रह्म एक, आत्मा एक, ब्रह्म एति आत्मा एक ही. तो ब्रह्म रियलिटी दे बिलीव वन ब्रह्मा. दे से अद्वैतवाद, मतलब नो सेकेंड, ओनली वन, देयर इज नो सेकेंड. बट हम लोग क्या करते हैं, नहीं, वी आर नॉट इनटू अद्वैत, वी से पुरुष एंड प्रकृति बोथ. तो इसको बोलते हैं वेदांत. वेदांत में भी सोल एक है एंड प्योर कॉन्शियसनेस यस. मटेरियल एलिमेंट्स है जितना सांख्य में है, मतलब 25. पोजीशन ऑफ गॉड यस. परब्रह्म को ही वो भगवान मानते हैं, परब्रह्म. सोर्स ऑफ नॉलेज अगेन सेम है, परसेप्शन, इंटरफेयर, लाइक वेदास ही है सोर्स ऑफ नॉलेज. एंड इट्स ऑर्थोडॉक्स. गोल इज वननेस. इसका गोल क्या है, ब्लिस, वननेस, आनंदा, ब्रह्म में अपने आप को स्थापित कर देना उनका गोल है. इसको बोलते हैं ब्रह्मलीन. जो उनके संप्रदाय के लोग होते हैं ना, उसमें क्या यूज करते हैं, ब्रह्मलीन. शिवानंद पुरी महाराज ब्रह्मलीन है ना, और उसमें 10 होते हैं, जैसे पुरी, गिरी, आनंद, ऐसे करके 10 दंडी हैं. जैसे शंकराचार्य के 10 दंडी होते हैं ना, ईश्वर, इस तरीके से उनके टाइटल्स होते हैं. जैसे सोमेश्वर गिरी, ब्रह्मानंद गिरी है नहीं. तो ये लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं. तो जब वो लोग शरीर छोड़ देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्मलीन. और सांख्य योगी जब शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं, गोलोक वृंद वैकुंठवासी, है कि नहीं, या लिखते हैं वैकुंठवासी, ऐसे लिखते हैं ना. तो इस तरीके से इनके अलग अलग लैंग्वेज है. तो ब्रह्मलीन बोलते हैं क्योंकि दे बिलीव द फाइनल गोल इज टू वननेस, मतलब ब्रह्म में अपने आप को लीन कर देना. एंड देन देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वेदांता, अद्वैत वेदांता, उसके बाद विशिष्ट द्वैत वेदांता, द्वैत वेदांता, द्वैत अद्वैत वेदांता. वेदांत में भी कई ब्रांचेज हैं, वेदांत में भी कई ब्रांचेज हैं. अद्वैत वेदांता जिसको मोनिज्म बोलते हैं,
विशिष्ट अद्वैत वेदांत, ठीक है, उसके रामानुजाचार्य है। अद्वैत वेदांत जो है वो है श्री आदि शंकर इज अद्वैत वेदांत। द्वैत माधवाचार्य, द्वैत द्वैत व निम्बार्काचार्य, ठीक है ना। तो ये जो वेदांती फिलोसफर है, ये 4 फिलोसफर है, द्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत और द्वैत अद्वैत, ठीक है ना। विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य, द्वैत माधवाचार्य एंड द्वैत अद्वैत जो है वो है आपके निम्बार्काचार्य। तो अब ये 4 आचार्य के बारे में जान लिया आपने, ये सब वेदांत फिलोसफी है। तो इसमें से जो शंकरा फिलोसफी है वो दैट इज अ माया फिलोसफी, बिकॉज द्वैत अद्वैत फिलोसफी है। बाकी द्वैत है, विशिष्ट द्वैत है, द्वैत अद्वैत है, तो ये सब जो है मायावाद फिलोसफी नहीं है। दे आर द रियल फिलोसफी एंड दे आर द रियल संप्रदाय। तो शंकरा संप्रदाय भी है, शंकराचार्य भी ऑथेंटिक संप्रदाय है, बट इल्यूजनरी संप्रदाय है। बाकी वैष्णव संप्रदाय है, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, ठीक है ना, ये सब साउथ के हुए हैं। माधवाचार्य, ठीक है ना। तो निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, दे आर द एस्टेब्लिशर ऑफ ऑल दिस फिलोसफी। तो आपको भारतीय फिलोसफी में, ऑर्थोडॉक्स में इतना ही जानना है। तो ये 4 संप्रदाय जो हैं उसी को ऑथेंटिक माना गया है, बिकॉज ऑल दिस फोर संप्रदाय comes under the Sankhya philosophy. They believe in Dvaitavada, not Advaitavada. They believe in dual, पुरुष प्रकृति both permanent. तो इसमें आगे, इसी को आगे संप्रदाय बोलते हैं। संप्रदाय में नाम आ जाता है, श्री संप्रदाय, माधवा संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, इस प्रकार से नाम आ गया है, ठीक है ना। क्यों माता जी, पद्मा माता जी मेरे से इसमें ज्यादा स्थित जानती हैं। I know these 4 sampradayas, Prabhuji. The preacher. Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Shri Sampradaya and Kumara Sampradaya. हाँ तो So this one Shri Sampradaya, Ramanujacharya. हाँ तो रामानुजाचार्य जो है ना, रामानुजाचार्य की क्या पोजीशन है? रामानुजाचार्य is basically विशिष्ट अद्वैत। हाँ, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है ना। एक्चुअली एक से बढ़कर एक ऐसा आया ना, मीन एक्चुअली शंकराचार्य, देन मध्वाचार्य, हाँ, लास्ट अल्टीमेट इज चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी ब्रह्म माधव संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ी, क्योंकि ही वाज अ गौड़, सो ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, बट ब्रह्म माधव संप्रदाय, तो वो जो है, तो ठीक है, ब्रह्म, क्योंकि ही वाज अ गौड़, सो हिज नेम वाज एडेड, सो ब्रह्म गौड़ीय माधव, बट चैतन्य महाप्रभु केम इनटू ब्रह्म माधव संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय। और उनका फिलॉसफी oneness in, I mean actually this one, what is the name प्रभु जी, हमारा चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी, simultaneously one and different. हाँ, simultaneously one and different, that is ultimate actually, that is more practical I feel. तो द्वैत अद्वैत में आ जाते हैं क्या? द्वैत अद्वैत हो जाएगा वो फिर simultaneously one and different में द्वैत अद्वैत नहीं, उनका qualitatively one, quantitatively different. हाँ, जोर से बोलो प्रभु जी, जोर से बोलो, क्या बोला? अचिंत्य भेद अभेद, qualitatively one, quantitatively different. हाँ, अचिंत्य भेद अभेद, so quality wise is one, but quantity wise is many. उसको बोलते हैं एको हम बहुश्या, क्या बोलते हैं, एक वेद में कहते हैं ना, एको हम बहुश्याम, ऐसा कुछ है, मतलब है ना। तो दैट इज वेद अवेद, ठीक है। तो आगे
इतना जानिए, आपको परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप प्रभु जी, चैतन्य प्रभु जी जो किस परंपरा में आए? माधवाचार्य वाले में आए? हाँ, ब्रह्म माधव संप्रदाय। तो द्वैत में आए ना प्रभु जी? हैं? द्वैत वाले में आए ना हम? वही ऑफ कोर्स संख्या फिलोसफी है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तभी तो भगवत गीता और चैतन्य महाप्रभु, तभी तो राधा कृष्ण। एक्चुअली वो भगवत गीता बुक में ही है। हाँ, भगवत गीता के free से- ब्रह्मा जी फिर नारद मुनि। हाँ, परंपरा philosophy में। पढ़ो। उसमें भगवत गीता जो उल्टाओगे तो उसका परंपरा आपको दिखेगा। चलो ठीक है, थैंक यू और वेरी प्रभु जी, ये पर ब्रह्म जो बोलते हैं ये वेदांती लोग, पर मच। ब्रह्म किसको बोलते हैं बेसिकली? पर ब्रह्म बोलते परमात्मा। दे आर रिफरिंग टू भगवान लॉर्ड कृष्णा ओनली? नो, दे आर नॉट रेफरिंग टू कृष्ण। ओह, They are referring to the big jungle of ignorance ओके प्रभु जी। where you have to lose. So मैं बताया ना, ये सब टेस्टिंग के लिए है, ये सब आपके ब्रह्म ज्ञान की टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, ब्रह्म जिज्ञासा हुआ, पता चल गया who is ब्रह्म, then whether you are there in not, for that these are the illusion philosophy has come. ओके प्रभु। ठीक है ना। बट अगेन शंकराचार्य संप्रदाय है, एक शंकर संप्रदाय है उनका, जो फिलॉसफी को देने के लिए आए हैं। तो मैं आइडिया ये है कि हम लोग किसी भी एजुकेशन में इस ज्ञान को नहीं लेते हैं जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे, जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम योग नहीं पढ़ेंगे। योग के अंदर में ये पार्ट है समझना। तो इसलिए आज हम इस माध्यम से आपको बता दिए कि कितने संप्रदाय है, क्या द्वैत है, क्या द्वैत है, कि कहाँ से सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से। देखो, अब देखो गीता पढ़ने से जो प्रभुपाद ने दिया तो स्ट्रेट अवे आपको समझ में आ गई चीजें। लेकिन अभी ऑर्थोडॉक्स, हिटोडॉक्स, फिलॉसफी, इसका ज्ञान मोस्टली भक्तों को नहीं रहता है ना। मीमांसा, वेदांता जरूरत भी नहीं है जानना, लेकिन हमारा काम है आपको थोड़ा सा बताना ताकि आप कहीं सुनो मीमांसा तो मीमांसा क्या है, वेदांता क्या है, वेदांत तो जानते हो, ठीक है, न्याय क्या है, यू नो। चलिए, तो इस यहाँ पर हम खत्म करते हैं फिलॉसफी क्लास। फिलॉसफी में इतना ही जानना है, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी एक चीज प्रभु जी, वेदांत के बारे में बताया, ये तो उत्तर मीमांसा में आ गई प्रभु जी, पूर्व मीमांसा में क्या आती है? पूर्व मीमांसा के अंदर में मैंने बताया बोथ आर मच सिमिलर, बोथ आर मच सिमिलर। ये देखो, ये पूर्व मीमांसा जो है उसमें भी रियलिटी मेनी 9 सब्सटेंसेस। वहां पे क्या है, उत्तर मीमांसा वेदांता में क्या है, वन ब्रह्मा, लेकिन उसमें होता है मेनी। इसमें पोजीशन ऑफ द आत्मा, आत्मा, सोल अगेन मेनी, कॉन्शियसनेस अगेन एक्सीडेंटल क्वालिटी ऑफ द सोल। मतलब अगर आप, इफ यू आर बैड देन योर सोल इज बैड, योर कॉन्शियसनेस इज बैड, इफ यू आर गुड देन योर सोल इज गुड। सो एक्सीडेंटली यू थिंक दैट सोल इज गुड और बैड। मटेरियल एलिमेंट सेम है। पोजीशन ऑफ गॉड, नो गॉड। पूर्व मीमांसा में नो गॉड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूर्व मीमांसा डू नॉट बिलीव इन गॉड, बट दे बिलीव द वेदा, द वर्ड ऑफ द वेदा। दे बिलीव, वेद को बिलीव करता है लेकिन भगवान की एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता है। दे बिलीव इन लिबरेशन, दे बिलीव द योगिक मेथड इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। आर यू गेटिंग पॉइंट? समझ गए? तो पूर्व मीमांसा जो है, दे हैव नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट दे बिलीव द वर्ड ऑफ द गॉड। जैसे पूर्व मीमांसा वाले क्या है, सिख धर्म में क्या, देखो सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब लेते हैं, भगवान को पूछते हैं नहीं। देयर इज नो एग्जिस्टेंस गॉड इन सिख, ओनली देयर इज अ बुक एंड द टीचिंग्स ऑफ द गुरु। आप समझ गए ना? दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ पूर्व मीमांसा, Sikhism. They have a words which came from the Guru, साधु, और उसी को वो पूजा करते हैं, उसी को मानते हैं। They have no existence of any God. वो अलग की बात है, कोई सिख अपने घर में मूर्ति लगा ले लक्ष्मी जी का, आउट ऑफ द हिंदू थिंग, बट देन एक्चुअली रिलीजन में उनके कहीं भी किसी भगवान की नहीं होते, उनका 10 गुरुओं के होते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, खलास। तो इट्स ए पूर्व मीमांसा, एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ पूर्व मीमांसा। हाँ ठीक है, चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।